वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में शिरकत के लिए आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी दाउस पहुंच गए हैं। जगन के हमरा रियासती वज़रा, एमपीज व दीगर भी मौजूद हैं। जगन मोहन रेड्डी ने आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सरबराह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान कई अहम मुआहदे हुए हैं। रियासत में खेलों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। रियासती वजीर रोजा ने अपने दौरे करनूल के मौके पर यह बात कही। रोजा ने अपने दौरे करनूल के मौके पर आउटडोर स्टेडियम में 70 लाख रुपयों की लागत से तामीर करदा जिमनास्टिक क्लब का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिमनास्टिक के खिलाड़ियों ने शानदार मुजाहरा किया। रोजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत भर में समर कैंप्स कामयाबी के साथ चल रहे हैं। కరెంటు పెరిగినా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగినా లేదా వాళ్ళు చెప్పే ఏదైనా కూడా దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో పెరిగేది। ఈ రోజు ఏపీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెంచారని తిడుతున్నారే, మరి దేశమంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెంచారా? మరి దేశ జాతీయ పార్టీ జాతీయ నాయకుడిని అని చెప్పుకునే చంద్రబాబు నాయుడు, లోకేష్ ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మాత్రమే తిడుతున్నారు? ఎందుకు మిగతా స్టేట్స్ ముఖ్యమంత్రులు తిట్టట్లేదు? ఎందుకు ప్రధానమంత్రి మోడీని తిట్టట్లేదని నేను అడుగుతున్నా। ఎందుకంటే దేశమంతా జరుగుతుంది ఇది, కానీ దేశమంతా ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనటువంటి విధంగా 31 సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో ఈరోజు ప్రజలకి అండగా నిలబడి కరోనా టైంలో కానీ వరదల టైంలో కానీ లేదా తను పాదయాత్రలో ఇచ్చిన వాగ్దానం ప్రకారం కానీ మీరు చూస్తే తన మేనిఫెస్టో ఈరోజు చూపించి ప్రతి గడపకు వెళ్ళి నేను మీకు ఇది వాగ్దానం చేశాను, ఇది నెరవేర్చానని ధైర్యంగా చెప్పుకునే స్థాయికి ఈరోజు ఆయన పరిపాలించాడు కాబట్టి మేము గ్రామాల్లో తిరగగలుగుతున్నాం। కానీ ఈరోజు ధైర్యంగా గ్రామాల్లో తిరగాల్సిన ప్రతిపక్షం ఏమో దొంగల్లాగా ఎక్కడ రోడ్ల మీద ప్రెస్ను పిలుచుకొని మాట్లాడుతుంది। నిజంగా మీరు 14 సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు, 13 సంవత్సరాలు అపోజిషన్ లీడర్గా ఉన్నారు। ఏ రోజైనా ప్రజల సమస్యల గురించి ఆలోచించారా? ఆ సమస్యల పరిష్కారానికి ఒక మంచి సంక్షేమ పథకాన్నైనా తీసుకొచ్చారా? రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో మీ పాత్ర ఏంటని నేను అడుగుతున్నా। ఏదో ఒక్కసారి నాకు అవకాశం ఇవ్వంటున్నారు। మొన్న రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు నీకు అవకాశం ఇచ్చాం, ఏం చేశారు? ఈ రాష్ట్రాన్ని దోచుకొని హైదరాబాద్లో దాచుకొని ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నారు। 10 ఏళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉండి మన రాష్ట్రాన్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవడమే కాకుండా విభజన చట్టంలో మనకు రావాల్సిన ఆస్తులు తెచ్చుకోకుండా ఓటు నోటు కేసులో నువ్వు దొంగలాగా దొరికిపోయి ఈరోజు మా జీవితాలంతా కూడా నాశనం చేసిన నువ్వు నీకు అసలు మాట్లాడే అర్హత ఉందా అని నేను అడుగుతున్నాను। आंध्र प्रदेश में जगन हुकूमत की जानिब से समाजी इंसाफ के उन्वान से बस यात्रा शुरू की गई है। श्रीकाकुलम से बस यात्रा का आगाज हुआ। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कादर बादशाह ने बस यात्रा के इफ्तिताही जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जगन दौरे हुकूमत में SC, ST, BC और माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ हुआ है। ఎవరంటే ఇండియాలో ఒకే ఒక పేరు, అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాదా అని నేను అడుగుతున్నాను। చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ఏం చేశారయ్యా? చెప్పినవన్నీ అసలు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో సెంట్రల్లో మీ మంత్రులు, ఇక్కడ బీజేపీ మంత్రులు ఉండి సెంట్రల్ మొత్తము మీరు హవా నడిపి ఏమీ అసలు డెవలప్మెంట్ ఏపీ స్టేట్లో ఇవ్వలేదు। ముఖ్యంగా చూస్తే SC, ST మైనార్టీలని అణిచివేసిన ఘనత చంద్రబాబు నీదే కదా అని అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని అందరూ। అటువంటి నీచుడు చంద్రబాబు నాయుడు కాదా అని అడుగుతున్నాను। నీ మేనిఫెస్టోలో బీసీల గురించి ఎన్ని వాగ్దానాలు చేశావు, ఎస్సీల గురించి ఎన్ని వాగ్దానాలు చేశావు, ఎస్సీల గురించి ఎన్ని వాగ్దానాలు చేశావు। ముఖ్యంగా నేను మైనారిటీ అధ్యక్షుడిని, దగ్గర ఎలక్షన్ల ముందుగా ఆ నీ మేనిఫెస్టో చూస్తే దగ్గర 12 వాగ్దానాలు చేసిన నీచుడు ఎవరంటే చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పి గట్టిగా చెప్తున్నా। मुस्लिम हुकूक तहफ़्फ़ुज़ तंजीम के सदर फारूक शिबली ने YSRCP पर बीजेपी के साथ साजबाज का इल्ज़ाम आयद किया। फारूक शिबली ने कहा कि राज्यसभा उम्मीदवारों के इंतखाब में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत मुसलमानों के साथ इंसाफ करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। मुस्लिम दुश्मनान तंजीमें और मुसलमानों के रिजर्वेशन के खिलाफ जो अपराध काम करे हैं, ऐसे लोगों को जो है लाकर, जो कि BC के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं जनाब कृष्णैया साहब, उनको जो है आज आंध्रा की तरफ से, मतलब हालांकि इनका तो ताल्लुक पूरा तेलंगाना से है, लेकिन इनको जो है आंध्रा में लाकर इनको जो है जो 4% रिजर्वेशन के खिलाफ
जो मुद्दा उठाए थे, ऐसे लोगों को जो आरएसएस का जो एजेंडा है उस एजेंडा को फॉलो करने वाले लोगों को जो है करीब होकर उन लोगों को राज्यसभा देना, और दूसरी तरफ से जो है वैसीपी ये कहना कि हम जो है अक़लियतों की फलाह व बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दोगली पॉलिसी है। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक मुसलमानों का कोई नुमाइंदा ना तो पार्लियामेंट में है, ना तो राज्यसभा में है, ना तो लोकसभा में है। तो अभी जो राज्यसभा के जो हाल ही में जो 4 सीट मिले थे, तो उनके अंदर से एक भी मुसलमान को ना भेजना ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। आने वाले दिनों में इसका जो खामियाजा है वैएसआर कांग्रेस पार्टी को और वैएस जगन मोहन रेड्डी साहब को जरूर भुगतना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि इससे पहले मतलब आपको जो चरित्र है वो चरित्र जो है एकदम गवाह देता है कि इससे पहले जो है कांग्रेस ने 2-3 लोगों को जो है राज्यसभा को भेजा, और उसी तरीके के साथ सैफुल्लाह साहब और जनाब अलहाज मरहूम लालजान बादशाह साहब, ये दोनों अफराद को तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से जो है सेंट्रल में राज्यसभा की सीट दी गई। लेकिन अभी वैसीपी जो है कहीं पर भी दूर दूर तक भी जो है ये काम करने के लिए उनका दिल जो है। तलबा में मुतालिका ज़ौक़ व शौक़ बढ़ाने के मकसद से रीड प्रोग्राम शुरू किया गया है। जिला करनूल के नंदियाल में वाक़ उर्दू लाइब्रेरी में रीड प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। आंध्र प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से यह प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। मकामी म्यूनसिपल कारपोरेटर मोहम्मद तमीम ने 3000 से ज़ायद किताबें लाइब्रेरी के हवाले की ताकि तलबा मुख्तलिफ मज़ामीन का मुताला करते हुए तालीम के मैदान में कामयाबी हासिल करें। प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। इसी सिलसिले में रीड प्रोग्राम नंदियाल में भी रहना होंगे। उर्दू अकेडमी की तरफ से लाइब्रेरी यहाँ पे है। उस लाइब्रेरी में हमारे अपूटा एसोसिएशन की तरफ से आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया है यहाँ पे। इस मौके का पूरे नंदियाल के बच्चे आके फायदा उठाना चाहिए। यहाँ उर्दू अकाडमी नंदियाल के आमदा हो गए, तैयार हो गए की तरफ से जो है साल का, और उसको जो है बुला रहे हमारे हिंदुस्तान का जो है तहजीब से शुक्रिया। रियासती गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल तलबा के जरिए ही बेहतर हो सकता है। करनूल में वाक़ रायलसीमा यूनिवर्सिटी में तीसरा ग्रेजुएशन डे मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें रियासती गवर्नर ने वर्चुअल मीटिंग के जरिए शिरकत की। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आचार्य आनंद राव की क़यादत में ग्रेजुएशन डे मुनक़्क़िद हुआ। इस दौरान 66 तलबा को गोल्ड मेडल और बकाया तलबा को सर्टिफिकेट्स दिए गए। ग्रेजुएशन डे तकरीब में उर्दू यूनिवर्सिटी के अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के आला ओहदेदारान और औलिया तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरकज की जानिब से लाई गई नई कौमी तालीमी पॉलिसी को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। विजयवाड़ा में से रोज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले तालीमी तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इजलास के दौरान नेशनल पेंशन स्कीम पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में शरीक माहिरीन ने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम सिर्फ कारपोरेट कंपनियों के मुलाजमीन के लिए ही फ़ायदेमंद है। आज चाहे वो एनपीएस का मुद्दा है, राष्ट्रीय पेंशन योजना का, और चाहे वो एनईपी का मुद्दा है, राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये दोनों पॉलिसी केंद्र सरकार की किसी के हित में नहीं है। अगर मैं एनपीएस की बात करूं, ये किसी अध्यापक कर्मचारी की, तो क्या ये सरकार के भी हित में नहीं है। बहुत बड़ा अमाउंट कॉरपोरेट सेक्टर को जा रहा है और लोगों की लूट है, ये सरकार की भी लूट है। हम इसका विरोध करते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई है 2020, ये भी किसी के हित में नहीं है। टीचर्स की बात नहीं है, स्टूडेंट्स के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं। अगर ये इसका देखा जाए तो इसके 3 सी आते हैं, सेंट्रलाइजेशन, कम्युनलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन। ये देश के तमाम बच्चों को पढ़ने से रोकने की पॉलिसी है। शिक्षा नीति होनी चाहिए, और हम भी मांग करते हैं कि ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो जो तमाम बच्चों को सुनिश्चित करे फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की एजुकेशन, ये सारे प्रबंध करते हो, बच्चों को सारा सामान उपलब्ध करवाती हो, ब्रेकफास्ट, लंच, मिड डे मील, बस्ता, किताबें, आईटी सपोर्ट, सब कुछ उपलब्ध करवाती हो। ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहिए, और ये दायित्व केवल सरकार ले, ऐसा हमारा मानना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।